تو السلام علیکم یوٹیوب فیملی، آئی ہوپ یو آر آل ڈوئنگ گریٹ۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ میں نے عمرہ سیریز اسٹارٹ کی ہوئی ہے، تو آج ہم لوگ جا رہے ہیں مکہ کی کل زیارات پر، اور پھر آج ہم لوگوں کا بڑا عمرہ بھی ہوگا جو کہ ہم لوگ مسجد عائشہ سے کریں گے۔ تو پھر چلیں ہم ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں، اور کل زیارات آپ کو سنائی بھی جائیں گی اور دکھائی بھی جائیں گے انشاءاللہ۔ درود شریف پڑھ لیجئے گا اور اس سفر کو عبادت سمجھ کے دیکھیے گا۔ حرم کی شان اللہ تعالیٰ نے یہ رکھی ہے کہ بندہ یہاں آتا نہیں بلکہ لایا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے یہاں آنے کے لیے کوئی شرائط نہیں رکھی کہ بندے تیری نمازیں اچھی ہوں گی تو تجھے میں اپنے بھی، کہ تیرے پاس جائیدادیں ہوں گی، پیسہ ہوگا تو میں تجھے اپنے گھر میں بلاؤں گا۔ اللہ نے یہاں آنے کے لیے کوئی شرط نہیں، جب پسند آ جائے گا میں تجھے داخل کر دوں گا۔ اب اللہ رب العزت کی رحمت کو پسند آ گئے، رب کی رحمت کو دکھا، جب اس نے اپنی رحمت کو دیکھا تو مجھے اور آپ کو وہاں لا کے کھڑا، وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ۔ اے سمجھ آپ موجود ہیں، یہ مکہ المکرمہ ہے، انہیں وہاں آنے کی اجازت دیتے ہیں جنہیں ہم عزت بخشنا چاہتے ہو، جنہیں یہ بتانا چاہتے ہو کہ بھائی تیری جو عزت ہے میری نگاہوں میں کیا ہے، جسے ہم کوئی بات سمجھانا چاہتے ہو، جسے ہم اپنا بنانا چاہتے ہو، ہم اس کمرے میں اس جگہ پر اس بندے کو جگہ دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ رب العزت کا بھی ایک نظام ہے، اس پوری کائنات کے اندر جو اللہ کی جو بیٹھک ہے وہ مکہ المکرمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کے سننا چاہتا ہے، جسے عطا کرنا چاہتا ہے، جسے معاف کرنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنے اس بیٹھک میں مکہ المکرمہ میں داخل کر دیتا ہے۔ اللہ آپ کی سننا چاہتا ہے، اللہ آپ کو عطا کرنا چاہتا ہے، اللہ معاف کرنا چاہتا ہے، اور اللہ کی دیکھیں رحمتیں دیکھیں کہ اس کا بہانہ ڈھونڈ رہی ہیں ہمیں بخشنے کے لیے۔ اب اور میں اکثر عرض کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے کرم کر دیا، بلا آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، خانہ کعبہ کے پیچھے ایک پہاڑی ہے جسے جبل ابو قبیس کہا جاتا ہے، کہ اس پہاڑی کے پیچھے ایک لشکر ہے جو تم پہ حملہ کرنا چاہتا ہے، میری یقین کر لیں گے کیونکہ ہم نے آپ کو صادق اور امین پایا ہے، آپ نے کبھی غلط بیانی نہیں کی۔ تو آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے مکہ والوں تو سنو، میں اللہ ایک ہے، اس کے سوا سجدہ کسی کو جائز نہیں، اور میں اللہ کا آخری نبی ہوں۔ اہل مکہ نے جب یہ سنا تو وہ منتشر ہو گئے، اپنے اپنے گھروں کو لوٹ گئے۔ وہ صرف گھروں کو لوٹے ہی نہیں، کیونکہ اس کے جو ان کے سردار تھے کچھ اور ہوتی تو برداشت تھی، لیکن وہ آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جان کے دشمن ہو گئے۔ اللہ رب العزت نے حکم دیا، جبرائیل جاؤ میرے محبوب سے کہہ دو کہ وہ ہجرت کر جائیں۔ جبرائیل حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ فرماتا ہے کہ ہجرت فرما جائے، تو توڑ کے دروازے پہ آ جاتے، شاید محبوب تشریف لے آئے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لاتے ہیں اور سفر شروع ہوتا ہے۔ یہ سفر شروع کیا، میں آپ سے عرض کرتا چلوں، یہ وہ جگہ ہے، یہ وہ خوش نصیب زمین ہے کہ جس نے وجہ جیسے حضرت عباس کو نہیں پتا تھا حضور کے کون سے دو دندان مبارک شہید ہوئے ہیں۔ کھڑی ہوگی آپ میرے ساتھ ہیں۔ یہ ہے ساری کاریں سود کی پہاڑیاں، اور ادھر سے لوگ سب چڑھ کر نہ اوپر جا رہے ہیں۔ ایسا بات ادھر آئیں گے اور بھی بناتے قیام کر چکے ہیں۔ بڑا پہاڑ ہے جو اسے جبل سوت کہا جاتا ہے، اور یہ جبل سوت شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ اس ٹاپ پہ دیکھیں آپ کو دو بڑے پتھر نظر آ رہے ہوں گے، نظر آ رہے ہیں دو بڑے پتھر ٹاپ پہ، اس ٹاپ سے شروع ہوتا ہے، اور یہ دیکھیے کٹائی کہاں پہ ہوئی ہے، یہاں تک یہ پہاڑ آتا ہے۔ ہم اس پہاڑ کے 413 فٹ 250 لوگ اسے فاصلہ کہتے ہیں، اور میں اسے ابو بکر کے عشق کا معیار اپنے ہاتھ کے سہارے سے پہاڑ پہ چڑھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ کا اور ہی کہا جاتا ہے سرخ ہونا شروع ہجرت کرتے ہوئے مدینہ کی طرف۔ اچھا ہو گیا، سب سے پہلے یہاں ٹھہرے ہے اپنے رب کے گھر پر، اپنے محبوب
मुझसे बेहतर ऐसा भी नहीं है। फर्जी नहीं सुना। इसका मतलब है ये फर्ज नहीं, वाजिब नहीं, सुन्नत नहीं, नफल नहीं, तो ये इबादत नहीं, क्योंकि सवाब तो इबादत का है। अब इबादत नहीं तो मुझे बताएं, जब इबादत नहीं तो फिर आपने पैसा क्यों खर्च किया, आपने अपनी जानों पे सख्तियां क्यों की, आप अपने जिस्म पर अपनी नींदें क्यों छोड़ी। लोग कहते हैं मोहब्बत, लोग कहते हैं मोहब्बत। ये हो सका कि जहां जहां सुना तेरे महबूब ने अपने पाक कदम रखे, हमने उस मिट्टी के जर्रे जर्रे को अपनी आंखों से चूमा है। अहले तसव्वुफ, अहले इश्क, ये जो सफर से आम समझा है, ये तो वो रास्ता है। अपने दाएं हाथ पे देखेंगे ज़ियारत के लिए, खुदा जाने सच है या क्या है। सुना है कि इसे इमाम काबा का महल कहा जाता है। ऐसा बन हाथ में देखेंगे एक चबूतरा लगा होगा जिसके ऊपर हद हरम लिखा होगा। ये देखिए, ये आगे की तरफ ये चबूतरा आ गया, ये आगे सब ये चबूतरा, ये हरम खत्म हो गया, ये हरम खत्म हो गया। अच्छा सुनिए, अब यहाँ पर एक बार सुभान अल्लाह, इस्लामी तारीख की चौथी बड़ी यूनिवर्सिटी है। पहली जामिया अज़हर यहाँ कायरा के अंदर मिस्र में, और दूसरी ये जामिया उम्मुल कुरा सऊदी अरब के अंदर है। यहाँ इस्लाम की तारीख पे तहकीक की जाती है। हरम से बाहर बनाई गई है। हरम से बाहर बनाने का मकसद क्या है कि यहाँ 72 कहा जाता है, 72 मुख्तलिफ जो उस मुख्तलिफ ममालिक के गैर मुस्लिम तलबा भी यहाँ इस्लाम पे तहकीक करने के लिए आते हैं। लेकिन इस्लाम की क्या बात है, ऐसे में जब अपनी तहकीक मुकम्मल कर लेते हैं, वापस लौटने लगते हैं, तो अल्लाह ताला उनके दिलों के अंदर अपने दीन के नूर को रोशन कर देता है, चराग रोशन कर देता है। और हर कहा जाता है यकम मुहर्रमुल हराम जंगल के अंदर सारा का सारा अराफात है। ये वो मकाम है जहाँ हाज पाला जाता है। हाज यहाँ इस मैदान में इस जंगली से पीले रंग के पेड़ डाला शुरू हो जाएंगे। ये पीले रंग के नहीं होगा, हाज साया हो जाएगा। ये वकूफ़ आज़म है, आज अल्लाह ताला के सामने पेश किया जाएगा, अल्लाह ताला के हुजूर खड़ा किया जाएगा। आज अपने मैं नमाज नहीं पढ़ूंगा तो अल्लाह को कोई फर्क पड़ेगा, मैं रोजा ना रखूं तो अल्लाह को कोई फर्क पड़ेगा। हाँ जी, मैं ज़कात ना दूं तो अल्लाह माफ करे अल्लाह गरीब हो जाएगा, या मैं हज ना करूं तो अल्लाह को कोई फर्क पड़ेगा। हुजूर ने खुद खड़े होकर दुआ की है। और भाई साहब यहाँ अल्लाह ये है अरफात का। यहाँ हज़रत आदम और बीबी हवा का उनकी दुआ कबूल हुई। यहाँ पर आना, इसके ऊपर चढ़ना कोई अजर सवाब की बात नहीं है, लेकिन ये है कि यहाँ पर आकर आपने अगर आपने जैसे यहाँ पर ये सब लोग बैठे हैं, पढ़ रहे हैं नमाज, यहाँ पर नफल पढ़ें, दुआ करें और अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद करें, बस इस चीज़ का ज़्यादातर सवाब है। बाकी यहाँ पर चढ़ना कंपलसरी नहीं है, अगर आप चढ़ना चाहते हैं तो चढ़ सकते हैं, जा सकते हैं ऊपर। यहाँ पर अक्सर लोग नाम लिखते हैं ऊपर जाकर, मट्टी वगैरह लेना, ये चीज़ें कंपलसरी नहीं है, लेकिन आप चाहें तो कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी ये है कि आप यहाँ दुआ करें और नफल अदा नहीं मालूम नहीं मैं बड़ा हूँ, मुझे तो बोलेगा तुम बड़े थोड़ी हो, तुम तो छोटे हो। पीछे जाओ, पीछे जाओ, जल्दी ये आ गई हमारी। को काले पे, किसी अजमी को अरबी पे और अरबी को अजमी पे कोई फौकियत हासिल नहीं। अगर किसी को किसी पे फौकियत हासिल है तो वो तकवा के बुनियाद पे है। के मैदान में दुआ करती है अल्लाह ताला मुझसे मरने से पहले मुझसे अपने बंदू के लिए कोई काम
ले ले। अल्लाह ताला ने दुआ कबूल फरमाई और यहाँ जो है अरफा मुकम्मल हुई है। जब ये मुकम्मल होगी तो इसका ठेकेदार पैसे लेने के लिए कहा जाता है वहाँ हल दो, तो कहने लगा पैसे थे ये भाई इतना खर्चा आ गया। ऐसे वो जो जुबैदा का मैदान शुरू होता है इस पहाड़ी के नीचे, दाएं हाथ की पहाड़ी से नीचे से लेकर उल्टे हाथ में देखें इस पहाड़ी के नीचे तक सारा का सारा मुज़दलिफा है। आगे जाते जाएंगे बुझ जाए अल्लाह आपके बंदों की आजमाइश लेता है। ऐसे बाद इसी मैदान के अंदर आगे चलेंगे अपने लिए एक मस्जिद आगे कुरान के दूसरे बारे में जिक्र मौजूद है। ये ऐसे बाद अपने देश से दाएं हाथ में देखें 2 मीनार वाली मस्जिद। जब आप मगरब के वक्त यहाँ पहुंचते हैं तो इसके दरवाजे खोल दिए जाते हैं, एक अजान होती है और वो मगरब की अजान है, 2 नमाजें मिलाकर पढ़ी जाती है। अभी अगले साल हज वाली रात को खोली जाएगी पूरी रात जहाँ इस मैदान है बाद ये मैसर जहाँ अल्लाह ने अजाब नाज़िल किया। अब यमन का बादशाह खाना काबा की तरह घर बनाया, लोगों को कहा मेरे घर का तवाफ करो, लोगों ने मना किया। मैसर में पहुंचा तो अल्लाह ताला ने एक छोटा सा परिंदा है अबाबील ऐसा हुक्म दिया कि 3 कंकरी उठाओ, इस लश्कर में बरसा। वो समुद्र वाली साइड से कंकरी लेकर आता, इस लश्कर में बरसाता, जिससे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है जहाँ अल्लाह का अजाब नाज़िल हुआ हो वहाँ तेजी से गुजर जाओ और अस्तगफिरुल्लाह करो। अभी हम थोड़ा सा आगे चलेंगे, आपके दाएं हाथ में ये वादी मंजर है, अस्तगफिरुल्लाह 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 रब्बी में जो बोला है अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे और आपको अपनी नाराजगी से महफूज फरमाए, अल्लाह हमें अपने सख्त पकड़ से महफूज फरमाए और अल्लाह हमें हम पे अपना खास रहम और करम अता फरमाए। बेशक अल्लाह रहमान है रहीम है। ऐसा बात इसी महीने के अंदर आगे चलेंगे तो अगली जियारत आएगी जिसे मकाम सलाम को ज़िबा करने के लिए लेकर आए। अभी हम थोड़ा सा आगे चलेंगे अपने उल्टे हाथ पे आगे करने के लिए लेकर आए, जिसे नजर आ जाए साथ वाले कोई दिखाए ऊंची आवाज में कोई जुबान हाँ पहुंचता हो दुरूद इब्राहिमी पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद। क्या है सबक, क्या है तवज्जो करेंगे। ऐसे बात सबक क्या है, अल्लाह अपने बंदों को बताना चाहता है। क्या बताना चाहता है? मेरे बंदे जितना बड़ा रुतबा ये अल्लाह की आजमाइश है। अल्लाह देखना चाहता है कहीं इसे अता करूं ये अपने दीन से तो नहीं फिर जाएगा, ये दीन से तो नहीं हट जाएगा। इसे बंद देखेंगे उल्टे हाथ पे ये 4 मीनार वाली एक मस्जिद आ रही है, नजर आ रही है। ये देखिए 4 मीनार वाली मस्जिद उल्टे हाथ पे, ये मस्जिद खैफ है। मस्जिदें है एक दूसरे के ऊपर बने हुए, ऊपर एक बड़ी सफेद छतरी है नजर आ रही है। वो देखिए वो एक सफेद और 4 पुल है एक दूसरे के ऊपर बने हुए नजर आ रहे। ये जो आपको बड़ी सफेद छतरी नजर आ रही है इसके नीचे शैतान कैद किया गया है। सबसे पहला शैतान यहाँ कैद है, 2 इसके बाद कैद है, 10 अल्लाह ताला मुझे और आपको शैतानियत से महफूज फरमाए। सीधे हाथ में देखेंगे, जहाँ तक देखेंगे जो एक मौजज़ा है जिसे मिना कहा जाता है। 4.5 लाख खेमे लगाए गए हैं, 4.5 लाख। जब ये मंजर देखें तो अल्लाह अकबर की सदा लगाइएगा, नीचे देखिएगा ताकि अल्लाह को इतना पसंद आ जाए। अल्लाह ताला मरने से पहले हमें यहाँ क्याम करने की तौफीक अता फरमाए। ऐसे बात ये नीचे देखिएगा, ये देखिए हाजी साहब अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। नीचे देखिए सारा का सारा मेरा आज देख के जा रहे हैं, अल्लाह के हुजूर निगाहें छोड़ के जाए, अल्लाह को पसंद आ जाए। अल्लाह मरने से पहले मुझे और आपको यहाँ अल्लाह के मेहमान आते सो जाते हो। रात सोने से पहले 3 दफा सुन्नत तरीके से दाहिनी आंख में और 2 दफा उल्टी आंख में इस्तेमाल करें। हरम से जाएंगे नहीं, अल्लाह ताला आपको इंशाअल्लाह ताला शिफा अता फरमाएगा। और जो तीसरी चीज है हाजी साहब वो कलवंजी है, जिसके बारे में हदीस में मौजूद है कि अल्लाह ताला ने इस कलवंजी के अंदर जो है एक मौत का इलाज नहीं रखा, बाकी हर बीमारी की इधर जोहाना में कार और इधर हम लोग सब आराम कर रहे हैं लेडीज। हाँ चप्पल बाहर ग्रुप है, चप्पल बाहर। वहाँ पे उसकी माँ से लड़ रही है कि मेरी तस्वीर बना। यहाँ पे हमारी माँ
हमें खत्म हुआ, हरम में दाखिल होने लगे तो यहाँ से एहराम करके अंदर दाखिल हुए। सबान नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ से सुन्नत किया और सुन्नत उम्रा किया। आज आप वहाँ से उम्रा कर रहे हैं। एहराम के बारे में कहा जाता है कि जब इंसान अल्लाह का मेहमान एहराम की 2 चादरें लपेट ले तो अल्लाह ताला उसमें करम की इंतहा कर देता है। अपनी कहता है सबान कोशिश क्या करनी है कि ये जो हरम में दाखिल होंगे अल्लाह ताला मेरे और आपकी ईमान की हिफाजत फरमाए। उतारी गई ऐसा बात, ये जबले नूर है। ये जबले नूर का मतलब है तो रोशनी वाला पहाड़, नूर वाला पहाड़ क्यों कहा गया? क्योंकि इसके पत्थरों में से, इस पहाड़ में से अल्लाह नूर निकालता है, रोशनी निकालता है। लोग दिन चलेगा कि इसे नूर का पहाड़ क्यों कहते हैं? क्योंकि सारे पहाड़ दिन में एक जैसे ही दिखाई देते हैं। अस्सलामु अलैकुम या अस्सलामु अलैकुम या उम्मुल मोमिनीन। एक हिस्सा ये है, दूसरा हिस्सा इस पुल के बिल्कुल साथ देखें। दूसरे से आगे चलेंगे तो आपके दाएं हाथ में देखेंगे ये है मस्जिद जिन। सूरह जिन यहाँ नाज़िल हुई और जिन्होंने इस्लाम कबूल किया। शजर है, एक दरख्त ये सामने देखें, अपने दाएं हाथ में देखें। सीधे हाथ में ये पुल के पीछे जो चीरता हुआ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में हाजिर हुआ और उसमें